Good morning, children. Welcome to my class. Today I will read a chapter of English literature. The name of the chapter is A Fascinating Ruin. What is the name of the chapter? A Fascinating Ruin. A fascinating means extremely interesting. A fascinating means extremely interesting. A ruin. A ruin means broken part of large building. Ruin means a broken part. We can see in this picture, this is a broken part. Okay, this is a broken part of large building. Children, in these stories we will read about a castle. We can see in this picture, this is a castle. This is about 400 years ago, more than 400 years ago. The building is built by a important person. The building is built by an important person or by a ruler. जैसे कोई राजा महाराजा पहले महल बनाते थे तो उस बिल्डिंग को क्या बोलते थे? कासल. क्या बोलते थे उसे? कासल. लेकिन बट नाउ अ डे इट बिकम अ ब्रोकन पार्ट. But nowadays it become a broken part. This is a broken part of this building. This is known as the ruin. This is known as the ruin. This is castle and this is ruin. Castle is the beautiful building, a large building that built by the important person. But nowadays it become a ruin. टूट फूट गया है सारा बिल्डिंग. ओके, तो इट बिकम अ ruin. In these chapters we will read about a fascinating. This is fascinating means extremely interesting ruin. Extremely interesting ruin. Okay, now let's begin to start. First I want to say, put your finger as I read. Okay, start now. Have you ever been a castle? क्या आपने एक castle देखा है? Yes, we can see in this picture. This is a castle. If you visit St. Andrews Castle in Scotland, और कभी आप स्कॉटलैंड जाते हो, वहाँ आप सेंट एंड्रूज कासल को देखोगे, you will find lots of the surprise. आप देख रहे हो ना, पहले 400 years ago ये बिल्डिंग कितनी सुंदर थी, ब्यूटीफुल लार्ज बिल्डिंग थी. इट इज़ बिल्ड बाय द सेंट एंड्रूज. नाउ इट बिकम ruin. Ruin means broken part. Okay, it is built by St. Andrews. It is built by St. Andrews. St. Andrews Castle is a ruin. St. Andrews Castle is a ruin. Ruin means a broken part of the large building. Stone have fallen from the wall. इसके सारे स्टोन टूट गए, स्टोन गिर गए सारे. अब देयर इज नॉट एनी साइन ऑफ द रूफ एनी मोर. और इसके ऊपर आप देख रहे हो कोई छत भी नहीं है. nobody lives in it. अब वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है. बट अ लॉन्ग टाइम अगो स्कॉटिश किंग लिव्ड हियर. बहुत साल पहले मीन्स 400 years ago a Scottish king. What is the name of the Scottish king? Tell me. St. Andrews. And the castle used to be full of people. और उस castle में बहुत सारे लोग भी रहते थे. There were soldiers and horses, maids and servants. वहाँ पर soldiers, horses, maids और servant भी थे. Many powerful men lived and worked in castle. Okay, और उस castle में
सोल्जर्स से अलग बहुत सारे पावरफुल लोग भी रहते थे। मीन्स एक राजा का महल था, मंत्री, महामंत्री, सैनिक, मेड, सर्वेंट, सब लोग थे उस कासल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल विजिटेड अस, और उस कासल को बहुत सारे लोग देखने भी आते थे। इतनी सुंदर बिल्डिंग थी, लार्ज बिल्डिंग थी। फाइव टॉल फाइव टॉल स्क्वायर टावर स्टूड इनसाइड द कासल। उस बिल्डिंग में कितनी टावर थी? 5 टावर थी। देयर वर बी गन्स इनसाइड द टावर। उस टावर के अंदर बड़ी बड़ी गन भी थी। सोल्जर फायर द गन्स एंड केप्ट इनसाइड द सेफ। जब वहाँ पर एनिमीज अटैक होता था ना उस कासल पर, तो सोल्जर्स उस कासल को प्रोटेक्ट करते थे। उनके पास बहुत बड़े बड़े वेपन्स थे और वो अपनी गन को यूज़ करते थे। ठीक है। नाउ चिल्ड्रन टेल मी, who built this castle? Tell me, who built this castle? This is built by St. Andrews. Where is it? This is in Scotland. This is in Scotland. Now, in these lines, we will read about this castle. How is it protected? How was it protected? मतलब इन लाइंस में हम क्या पढ़ेंगे कि ये कासल कैसे प्रोटेक्ट होता था, कैसे इसको प्रोटेक्ट करते थे। वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग थी, इसमें इसको बहुत लोग देखने आते थे। इसके बहुत सारे एनिमीज़ भी थे कि ये कासल हमें मिल जाए। तो एनिमीज़ क्या करते थे, इस कासल पर अटैक करते थे, और जो इसके अंदर सोल्जर्स होते थे वो एनिमीज़ को डिफ़ीट करते थे। वो कैसे डिफ़ीट करते थे अब हम इस लाइन में देखेंगे। Now we can see tunnels under the wall. This is very interesting line. Tunnels under the wall. What is the means of the tunnel? We can say it in Hindi सुरंग। पता है आपको क्या होता था इसमें कि जब बाहर से एनिमीज इस कासल पर अटैक करते थे तो शोर आता था। शोर आने से अंदर से सोल्जर्स क्या करते थे, एक लंबी सुरंग बनाते थे। लंबी सुरंग बनाकर वो वहाँ से दूसरे रास्ते से निकलकर उन सारे एनिमीज को अटैक करते थे और उनको डिफीट करते थे। यस, वी विल रीड नाउ। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। ट्राई टू पुट योर फिंगर। 450 years ago. How many times? 450 years ago. An army attacked the castle. जब आर्मी उस कासल पर अटैक करते थे, the wall were high and strong. क्योंकि हमें पता है उस कासल की वॉल कैसी थी, very high and strong. And those soldiers could not get inside. वो सोल्जर्स उस वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते थे। The soldier inside the castle heard some noise. जब अंदर से सोल्जर्स बाहर के एनिमीज़ का शोर सुनते थे तो वो क्या करते थे, टनल्स बनाते थे। क्या बनाते थे? टनल्स वी कैन से इट इन दी टनल्स मीन्स सुरंग जैसा रास्ता जैसे ज़मीन के अंदर से बना लेते हैं। दे डग अनदर टनल, वो दूसरा रास्ता बना लेते थे। एंड कॉट द अटैकर्स अंडरग्राउंड, और वो उन अटैकर्स पर, उन एनिमीज़ को अटैक करते थे और उनको डिफीट कर देते थे। क्या करते थे? डिफीट करते थे। द अटैकर्स फेड अ क्रशिंग डिफीट। इफ़ यू विजिट दिस कासल चिल्ड्रन, अगर आप कभी इस कासल को देखने गए, यू विल सी द टनल, आपको वहाँ पर ये टनल मिलेंगे। यू कैन क्लाइम, आप वहाँ चढ़ तो सकते हो, आप वहाँ जा तो सकते हो, बट यू हैव टू गो देयर केयरफुली। क्यों? दे आर लिट, वहाँ रोशनी तो है, बट द फ्लोर आर रफ एंड रॉकी, लेकिन उनका फ्लोर कैसा है बच्चों? स्मूथ नहीं है, बहुत ज़्यादा रफ है। ओके, सो चिल्ड्रन इन दिस लाइन्स we have read
about how this castle was protected. How this castle was protected? This castle was protected by a very strong and high wall. This castle was protected by the soldiers. This castle was protected by build the tunnels. Okay. Now, in these lines, a room under the ground. A room under the ground. In this line, we will read about a room. एक ऐसा रूम जहाँ पर उन एनिमीज़ को रखा जाता था, एनिमीज़ को डिफीट किया जाता था, उन्हें पकड़कर वहाँ रखा जाता था ताकि वो रूम से बाहर ना निकले. एक ऐसे रूम जहाँ से वो बाहर ना निकले. अगर वो जेल में रखेंगे तो एनिमीज़ क्या करेंगे, वहाँ से भाग सकते हैं. लेकिन उस कासल में ऐसे रूम बनाए गए थे एनिमीज़ के लिए जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकते थे. इन दिस लाइन वी विल रीड about this room. When the soldier caught somebody, जब soldiers enemies को पकड़ते थे, they put him in a room. उन्हें एक रूम में रखा जाता था. वो रूम कैसा था? सुनिए. अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे वो रूम बनाया था. ज़मीन के नीचे वो रूम बनाया था. इफ़ यू विजिट द कासल, अगर आप इस कासल को देखने जाते हो, यू विल सी दिस रूम. आपको ये रूम देखने के लिए मिलेंगे. आपको पता है कि रूम की शेप कैसी थी? इस रूम की शेप थी बॉटल लाइक. आपको पता है अगर एक बॉटल में एक चींटी अंदर चली जाती है तो क्या वो बाहर निकल पाती है इजीली? नहीं निकल पाती ना. तो वो रूम कैसे बने हुए थे? बॉटल जैसी शेप में बने हुए थे. आप जस्ट इमेजिन कि एक ऐसे रूम जो बॉटल की शेप में बने हुए थे. द वॉल्स आर मेड ऑफ रॉक. नोबडी हैज़ एवर क्लाइम दैम. कोई भी उन पर नहीं चढ़ सकता था. चींटी बहुत कोशिश करती है बॉटल में से बाहर निकलने की, तो वो नहीं निकल पाती. ऐसे ही एनिमीज़ एक बार उस रूम में डाल दिए जाते थे तो वो बाहर नहीं निकल सकते थे. और उनका गेट कैसा था? देयर इज़ अ स्मॉल ओपनिंग इन द रूफ. बहुत छोटा था, छोटा लाइक बॉटल ओपनर, like the top of the bottle. It is only way in. There are no windows. उसमें कोई खिड़की भी नहीं थी, कोई विंडो भी नहीं थी उसमें. Once a person was रूम ही कुड नॉट गेट आउट. एक बार एनिमीज उसमें भेज देने के बाद वो बाहर नहीं निकल सकते थे. जैसे एक बॉटल में अगर वो चींटी चली जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकती. उसमें कोई विंडोज़ भी नहीं होती और उसका जो गेट होता है वो बहुत छोटा होता है. ओके, उसकी हाई वॉल होती है. तो ऐसे ही वो रूम बने हुए थे. तो एक बार एनिमीज उसमें डाल देने के बाद वो बाहर नहीं निकल पाता था. पीपल आर नॉट पुट इन हियर एनी मोर ऑफ कोर्स, बट विजिटर्स कैन ईजीली इमेजिन. बच्चों, अगर मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ कि एक ऐसा रूम जो कि बॉटल की जगह जैसा दिखाई देता था, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो रूम कैसा होगा. उस रूम की बहुत हाई और स्ट्रॉन्ग वॉल थी. एक छोटा सा गेट था लाइक बॉटल ओपनर. अगर उसमें कोई एनिमीज़ भेजने के बाद उस एनिमीज़ का बाहर निकलना इम्पॉसिबल था. कैन ईज़िली इमेजिन व्हाट इट वॉज लाइक इनसाइड. हम उसको इमेजिन कर सकते हैं. वहाँ पर कोल्ड, डार्क एंड वेरी वेरी स्केरी. वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था? कोल्ड, डार्क एंड वेरी वेरी स्केरी. सो चिल्ड्रन, डू गो टू द सैंड
एंड्रयूज कासल समडे, कभी आप जाएं स्काउटलैंड. नाउ यू हैव सीन दिस कासल, अगर आपको ये कासल देखने के लिए मिले, थिंक अबाउट हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ फोर्ट इन इंडिया. इंडिया में जितने भी फोर्ट्स हैं वो कासल इससे कैसे डिफरेंट है. वी हैव रीड इन दिस स्टोरी अबाउट अ कासल, इट बिकम अ रूइन नाउ अ डे. मीन्स हमने एक राजा महाराजा की बिल्डिंग के बारे में पढ़ा. वो बिल्डिंग कैसी थी, उस बिल्डिंग की हाई वॉल थी, टनल्स थे, उसमें टावर बने हुए थे, और उसके अंदर बहुत सारे पीपल्स रहते थे, सोल्जर्स थे. सोल्जर्स के बाद बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वेपन थे जो वो अपने एनिमीज़ से अपने कासल को प्रोटेक्ट करते थे. ओके. जब बाहर से शोर आता था एनिमीज़ का अटैक करने का, तो वो एक टनल बना लेते थे अंदर से और दूसरा रास्ता बना लेते थे जिसे हम कहते हैं सुरंग. और वहाँ से वो वहाँ से सोल्जर्स को वो अटैक करते थे और उन्हें डिफीट करते थे, और उन्हें कहाँ डाल दिया जाता था, एक अंडरग्राउंड रूम में. वो रूम जस्ट लाइक अ बॉटल जैसा था. मीन्स उसकी रूम की हाई वॉल थी, हाई बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची वॉल थी, स्ट्रॉन्ग वॉल थी, जहाँ से एक बार सैनिक को उसमें डालने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलना उसका इम्पॉसिबल था. तो जस्ट वी कैन जस्ट इमेजिन हाउ वॉज इट castle. It become a ruin. So children, we have seen so many forts in India, but this castle is very different. Okay. Now you have to read this story twice. Okay. After reading this story, you have to do your English worksheet. First of all, on the first page you have to do one page writing and one page picture drawing. You can pick any picture, any colorful picture that is easy for you. You have to draw it on your notebook. आपको फर्स्ट पेज पर एक नीट एंड क्लीन राइटिंग लिखनी है, फिर आपको एक ड्राइंग बनानी है. देन यू हैव टू डू न्यू वर्ड्स. Fascinating, this is fascinating. This is ruin, this is castle, this is castle, this is Scotland, this is surprises, this is St Andrews, this is visited, soldiers attacked, crushing, climbed, visitors, amazing, scary. Okay, you have to do all these words. Now you have to do word meaning. Castle, ruin, tunnel and scary. And where is it meanings? You have to find yourself by using dictionary. Okay, now you have to do some questions. Why is St Andrews Castle a ruin? वो ruin कैसे हो गया, वो ruin कैसे हो गया बच्चों? Before 400, more than 400 years ago, it was a castle, but it become ruin. वो ruin कैसे हो गया? उसके सारे स्टोन्स नीचे गिर गए थे, हाई वॉल गिर गई थी, और अब उसकी कोई रूफ भी नहीं थी. Okay. Now the second question is, how was the castle safe? The castle was saved by the soldier and their strong weapons. They formed tunnels. Okay, you can do. Third question is, what happened when the army attacked the castle? क्या होता था जब आर्मी इस कासल पर अटैक करते थे? The army could not get inside due to the high and strong wall. Soldiers built the tunnels. Okay, soldiers
कासल के अंदर टनल बना लेते थे और उन आर्मीज़ को, एनिमीज़ को अटैक करते थे. ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज वन नीड टू बी द केयरफुल व्हेन क्लाइंबिंग डाउन द वॉल ऑफ दिस कासल. ओके, हमें क्यों केयरफुल रहना चाहिए? क्योंकि वहाँ का सरफेस कैसा था, कैसा है नाउ दिस टाइम, कैसा है वहाँ का सरफेस? रॉकी और रफ एरिया है. हम वहाँ जा सकते हैं, हम वहाँ देख सकते हैं टनल्स को, लेकिन वी शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज देयर फ्लोर इज़ वेरी रफ एंड रॉकी. देयर वॉज अ रूम built अंडर द ग्राउंड. वो सोल्जर्स बोटल लाइक रूम बनाते थे. क्यों बनाते थे बताइए? द रूम वॉज लाइक अ बोटल, सो द पर्सन, क्यों बनाते थे? सो दैट द पर्सन कुड नॉट क्लाइम, ताकि वहाँ से कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमीज एक बार उस रूम में भेज देने के बाद वहाँ से वो एस्केप करना उसका मुश्किल था. ओके, नाउ चिल्ड्रन, this chapter is over. You have to do revise noun. Okay, we will learn there are 4 types of noun: common noun and proper noun, collective noun and abstract noun. Common noun and proper noun, for example, the common word he, she, we can say ही और शी. हम ही और शी किसी भी गर्ल या बॉय को बोल सकते हैं. ही इज़ गोइंग, आई डोंट नो हु इज़ ही. ओके, हम ही किसी भी को, किसी भी बॉयज़ को बोल सकते हैं. मीन्स ही और शी क्या है? कॉमन है. प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स किसी का नेम, पर्टिकुलर नेम. जैसे मैं बोलती हूँ आयुष इज़ गोइंग, आयुष अ पर्टिकुलर पर्सन. ओके, अंजलि इज़ गोइंग, अंजलि अ पर्टिकुलर person, that is a proper noun. Common noun, the word that is used for anyone. ठीक है, किसी के लिए भी हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं. प्रॉपर नाउन मीन्स यूज फॉर द पर्टिकुलर पर्सन. ओके, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. दिस इज़ वेरी ईजी. सर्कल, आपको सिर्फ सर्कल और अंडरलाइन यूज़ करनी है. ओके, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब गैदरिंग. मीन्स a name. Okay, a name, that is team, bunch, litter. Means we can see bunch of grapes, bunch of grapes, team, a number of the people. Okay, the collective noun, hence we can see collective noun क्या होता है बच्चों? collective noun refer to the group of the people, animals and things. Okay, now we'll know about abstract noun. That is abstract noun. Abstract noun means the sentence that tell us about good or bad qualities of any person. Okay, जो हमें किसी की गुड और बैड क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, वो गुड और बैड क्वालिटीज़ क्या होती है बेटा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है. क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे फ्रेंडशिप गुड क्वालिटीज़, हैप्पीनेस गुड, करेज गुड, लव गुड. ओके, एंगर बैड. गुड और बैड क्वालिटीज़ दैट shows, that is known as the abstract noun. Okay, you have to do this exercise. You can do it easily. This is not a very long portion. Children, I attached a answer key with it. You can check your answers. Okay, now you have to read it. You have to do your work on time. Should be neat and clean. Okay, okay, bye bye. Thank you.